کہاں مر گئی ہے تو؟ کتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، سنائی نہیں دیتا کیا؟ بہری ہو گئی ہے کیا؟ وہ اندر سے چلاتے ہوئے باہر آئی اور مجھے دیکھتے ہی پاؤں سے ٹھڈا مار کر کہنے لگی، کیا مسئلہ ہے؟ بات سننے میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ چل جا، اٹھ، میرے لیے ایک گلاس پانی کا لے کر آ، گرمی سے برا حال ہو گیا ہے۔ میں جو صحن کی صفائی کرنے میں مگن تھی، اس کے ٹھڈا مارنے کی وجہ سے دور جا گری۔ میں نے فوراً سے کہا، ٹھیک ہے اماں، میں لے کر آتی ہوں، مجھے آپ کی آواز نہیں آئی تھی، کام کر رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی کچن میں آئی، جلدی گلاس میں پانی بھرا اور لا کر اسے تھما دیا۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں اور بدن کانپ رہا تھا۔ پانی پی کر اس نے گلاس میرے منہ پر مارا اور کہا کہ چل جا صفائی کر، کتنی دیر لگاتی ہے، ذرا سا کام کرنے کو کہہ دو، آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے۔ معمول کی طرح مجھے باتیں سنا کر وہ اندر کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں نے دکھ بھری نگاہوں سے اسے ایک بار دیکھا، یہ تو روز کا تماشا بن گیا تھا۔ ہر روز کسی نہ کسی بات پر وہ مجھے ذلیل کرتی اور پھر بیٹھ کر میرا تماشا دیکھتی۔ یہ کر کے اسے نہ جانے کون سی خوشی ملتی تھی۔ 2 دن بعد اس کے میکے والے کچھ دن کے لیے رہنے کے لیے آ رہے تھے۔ اس کے بھائی بھابھی جو دوسرے شہر میں رہتے تھے اب اس قصبے میں شفٹ ہو رہے تھے، اسی لیے کچھ دن ہمارے گھر میں ہی رکنے والے تھے۔ حالانکہ ہمارے گھر میں کچھ خاص جگہ نہیں تھی، 2 کمروں پر مشتمل یہ چھوٹا سا گھر تھا۔ ہم 8 لوگوں کے لیے یہاں رہنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ پہلے سے ہی گھر میں جگہ کم تھی، اوپر سے وہ لوگ بھی آ رہے تھے، تو ہم سب کہاں پر رہیں گے؟ یہ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ حالانکہ میری سوتیلی ماں کے یہاں پر اور بھی رشتہ دار تھے، وہ لوگ چاہتے تھے تو وہاں پر بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ لوگ یہیں پر رہنے آ رہے تھے۔ سوتیلی ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پورے گھر کی اچھے سے صفائی کر دے، اگر گھر میں ایک ذرا بھی مٹی نظر آئی تو تمہارا حال برا کر دوں گی۔ میں سخت گرمی میں باہر کام کر رہی تھی۔ اسی وقت اندر سے دادی کی آواز آئی، عائشہ مجھے کھانا بنا دے، مجھے دوائی کھانی ہے، کب سے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے دادی کو وہیں سے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں پہلے صفائی کر دوں، اس کے بعد کھانا بنا دوں گی۔ لیکن وہ وہیں سے چلا کر کہنے لگی، نہیں، صفائی بعد میں کرنا، پہلے کھانا بنا کر دے، تیری ماں تو کچھ بھی بولتی رہتی ہے اور تو آنکھیں بند کر کے اس کی باتوں کو مانتی ہے۔ میں اس گھر کی بڑی ہوں، تیری اتنی جرت کہ تو میرا حکم ٹالے گی۔ دادی بھی سوتیلی ماں سے کم نہیں تھی، لیکن دونوں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی، اس کی وجہ سے ہمیشہ میں پستی رہتی تھی۔ ابھی بھی جب دادی مجھے کھانا بنانے کو کہہ رہی تھیں تو سوتیلی ماں اندر کمرے سے باہر آئی اور کہنے لگی، پہلے تو صفائی کرے گی، اس کے بعد ہی اس بڑھیا کے لیے کھانا بنائے گی۔ میں تو ان دونوں کے بیچ میں بالکل پھنس کر رہ گئی تھی۔ دادی اندر سے باہر آ گئی اور سوتیلی ماں کو کہنے لگی، تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ تیرا گھر ہے، یہاں تیرا راج چلے گا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہاں پر صرف میرا ہی حکم چلتا ہے، جا کر اندر بیٹھ جا، جو میں کہوں گی وہی ہوگا۔ وہ دونوں آپس میں زور سے بحث کرنے لگیں۔ صحن کی دیوار چھوٹی تھی، ذرا سی آواز بھی آس پڑوس میں جاتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح جب دونوں نے بحث شروع کی تو آس پڑوس کی عورتیں دیوار سے جھانک کر مفت کا یہ شو دیکھنے لگیں۔ میں نے بمشکل دادی اور سوتیلی ماں کو خاموش کروایا اور کسی طرح سے انہیں اندر لے گئی۔ یہ کرنا بہت مشکل تھا، میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اس وقت گھر پر میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے انہیں روکنا ضروری تھا، ورنہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اتر آتی۔ میں نے کچن میں آ کر جلدی دادی کے لیے کھانا بنایا اور پھر صحن کی صفائی وغیرہ کرنا شروع کر دی۔ ابھی مجھے گھر بھر کے کپڑے بھی دھونے تھے۔ دونوں ہمیشہ میرے لیے کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی کرتی ہی رہتی تھی۔ میرے 3 سوتیلے بہن بھائی تھے اور میری ایک پھپھو بھی ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ وہ طلاق یافتہ تھیں اور حد سے زیادہ زبان دراز تھیں۔ ان کی زبان کے آگے تو گویا خندق تھی، ہر کوئی ان سے دور بھاگتا تھا۔ میرے گھر میں موجود ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے مجھے تکلیف پہنچانے کا باعث بنتا ہی تھا۔ ہم قصبے پہ رہتے تھے اور یہاں ٹوٹے پھوٹے مکان بنے ہوئے تھے۔ ان کچے پکے مکانوں میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا حد سے زیادہ مشکل تھا۔ ہم نے گھر میں کچھ جانور وغیرہ پال رکھے تھے، بھینسوں کا دھیان بھی میں ہی رکھتی تھی۔ انہیں چارہ ڈالنا، ان کی صفائی کرنا اور ان کا دودھ وغیرہ نکال کر قصبے میں بیچنا، یہ سب کام میرا ہی تھا۔ گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی کام کاج نہیں کرتا تھا۔ ابا ایک مزدور تھے، ان کی بہت ہی معمولی سی کمائی ہوتی تھی جو میری سوتیلی ماں اپنے پاس رکھتی تھی۔ گھر میری سوتیلی ماں کے حساب سے ہی چلتا تھا۔ دادی شور تو بہت کرتی تھی، لیکن اصل میں دادی کا کوئی حکم یہاں سنا نہیں جاتا تھا، اس لیے دادی، پھپھو اور سوتیلی ماں تینوں مجھ پر ہی چلاتی اور مجھ پر ہی حکم چلاتی تھی۔ کیونکہ میں کمزور تھی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، خاموشی سے سب کی بات ماننا میری مجبوری تھی، ورنہ کیا پتا یہ لوگ دھکے دے کر مجھے اس گھر سے ہی نکال دیتے۔
अम्मा की जिंदगी में भी दादी और अम्मा की कभी नहीं बनी थी। दादी को अम्मा एक आंख नहीं भाती थी। जैसे तैसे अम्मा ने गुजारा किया, लेकिन उनकी वफात के बाद मेरी जिंदगी गोया जहन्नुम बन गई। मैं सिर्फ 10 साल की थी जब अम्मा की वफात हो गई। अब्बा ने 2 महीने बाद ही जाकर दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ मुझ पर खूब जुल्म करती, यहाँ तक कि उसने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी। मैं कस्बे के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। पहले भी घर के कामकाज करती थी, क्योंकि फुप्पो और दादी पूरा दिन बैठकर चारपाई तोड़ती और काम मुझसे करवाती थी। अब्बा तो ये सब देखकर भी नजरअंदाज करते थे, और अब तो उनके साथ सौतेली माँ भी मिल गई थी। सब मिलकर मुझे खूब जलील करते और तकलीफ देते। मैं जो पहले सहन में बिस्तर डालकर सोती थी, अब सौतेली माँ ने मेरा बिस्तर जानवरों के बाड़े में डलवा दिया और कहा कि अब से तुम वहीं पर सोया करोगी। मैं बहुत रोई और उनकी मिन्नतें की कि मैं वहाँ कैसे सोऊंगी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात न सुनी। दादी और फुप्पो तो मुझे वैसे भी कमरे में सोने नहीं देती थी। वहाँ पर मेरे सौतेले बहन भाइयों ने सोना शुरू कर दिया। इस घर में किसी भी कोने में मेरी कोई जगह नहीं थी। हालांकि घर के सारे कामकाज मैं ही करती थी, इसके बावजूद किसी के दिल में भी मेरे लिए जरा भी एहसास नहीं था। मेरे सौतेले बहन भाई जब स्कूल जाते, उन्हें देखकर तो मुझे बहुत रोना आता। मैं भी तो स्कूल जाना चाहती थी। क्या मेरी उम्र थी घर में बैठकर ये सब करने की? पढ़ाई करना मेरा हक था, लेकिन मुझसे मेरा बस्ता और किताबें छीन ली गई थीं। मुझे पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक था। जब भी वो लोग पढ़ते तो मैं हसरत भरी निगाहों से सिर्फ उनकी तरफ देख कर रह जाती थी। कितने खुशकिस्मत थे वो सब, और एक मैं थी जिसे यहाँ पर खाने को भी कुछ नहीं मिलता था। पूरा दिन जानवरों की तरह सबके लिए कामकाज करती, खाना बनाती, घर की सफाई वगैरह करती। इसके बाद भी मेरे हिस्से में बची हुई सूखी रोटियां ही आती थीं। कभी अब्बा से शिकवा करने का सोचा भी तो उनका गुस्सा देखकर मेरी जबान खुद बखुद बंद हो गई। वो तो अम्मा के आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, सिर्फ सौतेली माँ की ही बात मानते थे। दादी और फुप्पो भी मेरे बारे में नहीं सोचती थी, किसी को मेरी परवाह नहीं थी। अभी मैंने दादी को खाना बनाकर दिया था, उसके बाद मुझे सबके लिए खाना बनाकर तैयार करना था। जब भी घर में कुछ खत्म होता तो मेरे ऊपर ही इल्जाम लगाया जाता कि मैंने ज़ाया कर दिया है, और फिर सौतेली माँ ये इल्जाम लगाकर मुझे खूब सारा मारती और कहती कि रोज रोज राशन नहीं लाया जा सकता, तेरे बाप की कोई फैक्ट्री नहीं है जो तू सब कुछ खत्म कर देती है। हालांकि ऐसा नहीं था, मैं तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती थी, हर चीज़ बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करती थी। लेकिन घर पर इतने ज़्यादा खाने वाले लोग थे, जाहिर सी बात है खर्चा तो होना ही था, इसमें मेरा क्या कसूर था। लेकिन कसूरवार तो आखिर में मैं ही ठहराई जाती थी। 2 दिन पहले की ही बात है, सौतेली माँ ने मुझसे कहा कि चाय बना दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं किचन में आई तो देखा कि चीनी खत्म थी। हालांकि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर मैंने चीनी रखी देखी थी, और जब जाकर मैंने उनसे ये बात की तो उन्होंने मुझे जोरदार लात मारी और कहा कि दफा हो जाए यहाँ से, हर वक्त ही बोलती रहती है कि ये नहीं है वो नहीं है, तेरे मुंह से सिर्फ यही लफ्ज निकलता है। कहाँ गई चीनी, बता मुझे। वो मुझे बालों से पकड़कर खींचकर सहन में ले आई। मैं रोए जा रही थी कि मेरे बाल छोड़ो, मेरे बाल छोड़ो, लेकिन वो मुझे घसीट रही थी। अंदर से दादी आवाजें सुनकर बाहर आई और कहा कि दोबारा से तमाशा लगा दिया है क्या? अब क्या है, सोने नहीं देगी क्या मुझे? तो सौतेली माँ ने कहा, अरे कैसे सोने दूं, यहाँ तो चोर भरे पड़े हैं। परसों तो चीनी लेकर आए थे और अब वो भी खत्म हो गई है। किसने ली है चीनी? मैं जानती थी कि ये किसका काम है। मेरी सौतेली बहन जो मुझसे शदीद नफरत करती थी, अक्सर वही चीज़ों को छुपा देती थी, जिसकी वजह से मुझे बातें सुनना पड़ती थी और मुझ पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगता था। और फिर उसने मुझे सहन में इतना बुरा मारा कि कई घंटे तो मुझसे उठा ही नहीं गया। लेकिन फिर भी उठकर घर के कामकाज तो मुझे ही करने थे। अभी तक मेरे जख्मों में शदीद दर्द था। इस हाल में भी मुझसे घर के कामकाज करवाए जा रहे थे। अगर कभी मुझे बुखार चढ़ जाता तो बेशक मैं जितना भी बुखार में तड़पती रहती, एक गोली तक मुझे नहीं दी जाती थी। डॉक्टर को दिखाना तो दूर की बात थी, बल्कि मैं तो अपना दर्द किसी से कह भी नहीं पाती थी, क्योंकि इस सब को ड्रामेबाजी और न जाने किस किस चीज़ का नाम दिया जाता था। हर गुजरते दिन के साथ मेरे अंदर जीने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी, लेकिन इन हालात में भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने की कोशिश करती थी। हमेशा नमाज अदा करती। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, अल्लाह से मदद मांगा करो, और मैं वही सब कुछ कर रही थी। रोते हुए अल्लाह से फरियाद करती कि मुझे इन जालिमों से निजात दिला दें, इनके दिल में मेरे लिए रहम डाल दे, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे मुसीबत भरे दिन तो अब असल में शुरू होने वाले हैं। 2-3 दिन बाद जब मेरी सौतेली माँ के घर वाले रहने के लिए आए तो उन्होंने गोया मेरा जीना ही हराम कर दिया। मैं पूरा दिन काम में मशगूल रहती थी, वो लोग भी इन्हीं की तरह थे।
किसी न किसी बात को लेकर मेरी झूठी शिकायतें लगाते ही रहते थे। उनकी भाभी ने मुझसे कहा कि मुझे चाय बनाकर ला दो। मैंने उन्हें 2 मिनट इंतजार करने का क्या कह दिया कि उन्होंने आसमान सर पर उठा दिया और कहा कि ये लड़की तो हमें बहुत समझती है, इसका कहना है कि हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। हालांकि मैंने ऐसी कोई बात भी नहीं की थी, मगर जब सौतेली माँ ने ये सुना तो मुझे सबके सामने सहन में बिठाकर खूब मारा। मेरे अब्बा एक साइड पर बैठकर तमाशा देख रहे थे। उन्होंने एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकाला। मैं रोए जा रही थी। अभी तो पहले जख्म ही ठीक नहीं हुए थे कि मजीद दर्द मिलना शुरू हो गया था। कोई भी मेरी मदद को तैयार नहीं था। आस पड़ोस के लोग भी तमाशा देख रहे थे। उनके लिए तो ये मामूल की बात बन चुकी थी। सालों से यही तो होता आ रहा था। जब मुझे मार मार कर वो थक गई तो अंदर चली गई और मैं सहन में बैठकर घुटनों में सर रखे बस रोए जा रही थी। अंधेरा हुआ तो उठकर जानवरों के बाड़े में आ गई। सोचा थोड़ी देर आराम करूं, उसके बाद रात के लिए खाना तैयार करूंगी। रोजाना मुझे सुबह शाम खाना बनाना पड़ता था। इतने लोगों का खाना अकेले बनाते बनाते मैं थक जाती थी। इसके बावजूद भी मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता था। जब मैं रोटियां बना रही होती थी तो सबको ताज़ा ताज़ा रोटियां चाहिए होती थी, इसलिए साथ साथ मैं बनाकर देती रहती। किचन में चूल्हे के आगे बैठ बैठकर मेरी हालत खराब हो जाती थी। एक गिलास पानी भी पीने को नहीं मिलता था और जब बर्तन उठाने जाती तो देखती कि सारी की सारी रोटियां खत्म हो चुकी हैं। अब मुझ में हिम्मत नहीं होती थी कि और रोटियां बनाऊं, तो इसलिए खामोशी से आकर लेट जाती। अगली सुबह सबके लिए नाश्ता वगैरह तैयार करती, सफाई वगैरह करती। इस दौरान खाना खाने का वक्त ही नहीं मिलता था और जब दोपहर में रोटियां वगैरह बच जाती तो सौतेली माँ उन्हें छुपा कर रख लेती। 2-3 दिन बाद सूखी रोटियां मुझे लाकर देती और कहती कि ले ये खा ले। वो यूं बोलती जैसे मुझ पर एहसान कर रही हो। एक दिन उसकी भाभी का एक सूट खराब हो गया। हालांकि वो मैंने नहीं खराब किया था। उसने मुझे धोने के लिए दिया, ये नहीं बताया कि इसका रंग गिरता है। हालांकि मैंने उसे अलग करके रखा हुआ था। मुझे डर था कि इसका रंग गिरेगा, लेकिन वो खुद मेरे पास आई और कहने लगी कि इस कपड़े में कोई मसला नहीं है, तुम इसके साथ ही धो दो। उसने मुझे साथ में अपने सफेद रंग के कपड़े भी दे दिए और दोनों को अपने हाथों से ही सरफ में डाल दिया। देखते ही देखते उसका रंग छूटने लगा और सफेद रंग का कपड़ा पूरा का पूरा खराब हो गया। जब मैं कपड़े धोकर फैलाने गई तो तब मैंने देखा कि उसकी हालत हद से ज्यादा खराब हो गई थी। वो यही तो चाहती थी कि कपड़ा खराब हो जाए और फिर वो मुझे इल्जाम लगाकर सबके सामने मार पड़वाए। उसने ऐसा ही किया। चिल्लाकर कहने लगी कि इसने मेरा कपड़ा खराब कर दिया। इतना महंगा मैंने जोड़ा लिया था, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? इसे इतनी अकल नहीं है कि हल्के रंग के कपड़ों को अलग धोया जाता है। पूरा कपड़ा खराब कर दिया, अब मैं क्या पहनूंगी? मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह का तमाशा खड़ा करेगी। इतना अरसा हो गया था, लेकिन मैं लोगों की चालों को समझ नहीं पाई थी। हर कोई मुझे इसी तरह से बेवकूफ़ बना लेता था। एक बार फिर से सौतेली माँ ने मुझे खूब मारा पीटा। एक यही काम वो ठीक से करती थी, लेकिन मेरे जिस्म को अब तक उसकी मार की आदत नहीं हो सकी थी। हर बार मुझे शदीद तरीन दर्द होता और मैं अकेले बैठकर रोती रहती। जब तक वो लोग यहाँ पर रहे यही सब होता रहा। जाते जाते भी उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसके जेवरात चोरी किए हैं। और फिर जब मेरे सामान की तलाशी ली गई तो कुछ नहीं मिला, और जब बाकी घर को छाना गया तो पता चला कि वो तो मेरी सौतेली बहन ने चुराए थे। उसका इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा दिया गया कि मैंने ही चुरा कर वहाँ रखे होंगे ताकि उसे फंसा सकूं। हालांकि मैं इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सब जानते थे कि मेरी सौतेली बहन की आदत कैसी है। किसी न किसी चीज़ को बिना पूछे उठा लेती है और फिर उसे अपने पास छुपा कर रख लेती है। लेकिन उसका किया हर गलत काम ठीक होता था और जो कुछ भी वो करती थी उस सब का इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया जाता था। वो मुझसे इतनी नफरत करती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हालांकि मैंने उसे हमेशा अपनी छोटी बहन समझकर प्यार मोहब्बत से ही पेश आई थी, लेकिन उनमें से कोई भी मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता था। हर जगह मेरा मजाक उड़ाया जाता था। मेरी रंगत थोड़ी दबती हुई सी थी, इसलिए मुझे काली काली कहकर बुलाते। ये सब सुन सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसके दिल में थोड़ा सा भी रहम होता। अभी भी मैं छत की सफाई कर रही थी, फिर मुझे कपड़े वगैरह भी धोकर फैलाने थे। इसी वक्त मेरी निगाह अपनी कमीज पर पड़ी जो कि बिल्कुल फट चुकी थी। मेरे पास तो 2 जोड़े ही थे पहनने को और वो भी फटे पुराने थे। अब मैं नए कपड़े कहाँ से लाऊंगी? इन कपड़ों को कब तक चला सकती थी? न जाने कब मैंने आखिरी बार कपड़े खरीदे थे। ये 2 सूट मैं कई सालों से चला रही थी और जब भी ये फटते तो उन्हें सीकर किसी न किसी तरह से गुजारा कर लेती थी। लेकिन अब इन्हें मजीद सीना मुमकिन नहीं था क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर फट चुके थे। अब मैं क्या पहनूंगी? किसी न किसी तरह अपने दुपट्टे से ही मैंने खुद को ढक लिया ताकि फटे हुए कपड़े नजर न आए, लेकिन कब तक छुपा सकती थी?
अब तो उनसे मेरा जिस्म झलकने लग गया था। जब मेरी सौतेली माँ ने देखा तो कहने लगी, तूने जानबूझकर ऐसा किया है, तू यही चाहती है कि लोग तुझे देखें, और कोई तरीका नहीं बचा था लोगों की हमदर्दी हासिल करने का। और फिर उसने मुझे फटे पुराने कपड़े दे दिए। पता नहीं उतनी रहमदिली उसके दिल में कहाँ से आ गई थी। बहरहाल मुझे कपड़े मिल गए थे, मेरे लिए यही काफी था। इसके बदले चाहे मुझे कितनी भी बातें सुनने को मिलती, मुझे परवाह नहीं था। उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक शादी आ गई। वैसे तो मुझे किसी भी तकरीब में ले जाने की जहमत नहीं की जाती थी, लेकिन ये शादी मोहल्ले में ही हो रही थी। मैं जानती थी कि यहाँ पर भी जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। जिस दिन शादी थी, सब तैयार होकर शादी में चले गए। हमारे यहाँ जब भी कोई शादी होती थी, खाने पीने को लेकर कोई न कोई हंगामा जरूर होता था। मेरी सौतेली माँ तो बाकायदा घर से थैलियाँ लेकर जाती और वहाँ जाकर छुपा छुपा कर खाना उनमें डालकर घर ले आती। मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मैं क्या कहती, बस खामोश रहती थी। लेकिन अब की बार जब शादी पर जाने की बात आई तो दादी ने मुझसे कहा कि तू भी तैयार हो जा, हर वक्त घर पर ही बैठी रहती है, घर से निकलेगी नहीं तो तेरी शादी कैसे होगी, लोग तुझे देखेंगे तो ही तो पसंद करेंगे। दादी की बात भी ठीक थी। मैंने तो अब तक अपनी जिंदगी में शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। जब मेरी सौतेली माँ ने ये सुना तो कहा कि इससे कौन शादी करेगा, ना तो इसमें कोई गुण है और ना ही अच्छी शक्ल है। बहरहाल दादी मुझे अपने साथ लेकर गई। मैंने वही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। मैं जब वहाँ आई तो मुझे शदीद एहसास कमतरी महसूस होने लगा। वहाँ पर सब ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे सिवाय मेरे। सब मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने दादी से कहा कि मैं वापस घर चली जाती हूँ, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे वहीं पर बिठाए रखा। मुझसे तो ठीक से खाना भी नहीं खाया गया। रात गए हम लोग वापस आए तो सौतेली माँ ने दादी से कहा कि इस मनहूस को क्यों साथ ले गई थी। सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, इसके कपड़े इस काबिल नहीं थे कि ये वहाँ जाती, और कैसे भूखों की तरह वहाँ पर खाना खा रही थी जैसे कभी खाना दिया ही न हो। हमारी नाक कटवा कर रखती है। दादी बोली, वैसे कौन सा तेरी मोहल्ले में इज्जत है जो तू इस तरह की बातें कर रही है, जा जाकर सो जा। मैं तो इसलिए लेकर गई थी कि कब तक इसे घर पर बिठाए रखेंगे, सीने पर मुंह दलती रहेगी, कहीं इसका रिश्ता करके इसको चलता करते हैं। लेकिन तू इस काम में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है। तुझे तो मुफ्त की मुलाजमा मिली हुई है ना, अगर ये चली गई तो घर का काम तुझे करना पड़ेगा, यही सोच रही है ना। दादी और सौतेली माँ ने एक बार फिर से बहस करना शुरू कर दी। उनकी लड़ाई काफी देर तक चलती रही और जब दोनों लड़ लड़कर थक गईं तो मुझे देखकर कहने लगी, हमेशा तेरी वजह से ही झगड़ा होता है, कैसी है तू, झगड़े करवाती रहती है। मैं हैरत से उन दोनों का मुंह देखने लगी। अपनी मर्जी से लड़ाइयाँ करके मुझे कह रही हैं कि मेरी वजह से झगड़ा होता है। मेरी सौतेली बहन जो खूब सारा मेकअप करके शादी में गई थी, अपने कमरे में लेटी हुई उन दोनों का झगड़ा सुन रही थी। जब दादी अंदर चली गई तो वो बाहर आई और अपनी माँ से कहने लगी, अम्मा चलें अंदर आकर लेट जाएं, परेशान न हो, ये और दादी तो बस ख्वाब ही देखते रह जाएंगे। इस काली से तो कस्बे का कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा, आप फिक्र मत करें, ये यहीं पर बूढ़ी हो जाएगी। उसके ऐसा कहने पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो हमेशा मेरा दिल तोड़ती थी, हमेशा इसी तरह की बात करती थी कि मैं कई दिन तक अंदर ही अंदर सुलगती रहती थी। वो अपनी जबान से मुझे कचूके लगाने से कभी भी बाज नहीं आती थी। किसी न किसी बात को लेकर मेरी बेइज्जती करती रहती थी। उसकी बहुत सी सहेलियां थीं, बाहर भी जाती थी, लेकिन मुझे कहीं पर भी जाने की इजाजत नहीं थी और ना ही किसी से दोस्ती करने की इजाजत थी। मेरी जिंदगी तो घर के कामों और घर में रहने वालों के हाथों बेइज्जत होते ही गुजर रही थी। कभी कभी मेरा भी दिल करता कि मैं भी बाहर जाऊं, हंसूं, बोलूं, बाजार में जाकर अपनी पसंद की चीजें खरीदूं, अपनी दोस्तें बनाऊं, लेकिन ये सब सिर्फ मैं सोच ही सकती थी। ऐसा करने का हक मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था और मैं अपनी किसी खुशी का इजहार भी नहीं कर पाती थी। ईद के मौके पर भी कोई मेरे बारे में कुछ नहीं सोचता था, मुझे तकलीफ ही मिलती थी। ईद वाले दिन सब लोग रिश्तेदारों के यहाँ मिलने मिलाने जाते थे, लेकिन मैं घर पर बैठी घर के कामकाज ही करती रहती थी। कभी कोई मुझसे पूछता नहीं था कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो मुझे इस बात की होती थी कि मेरे अब्बा सब देखते हुए भी अनजान बने रहते हैं, एक बार भी मेरे हक में एक लफ्ज़ तक नहीं निकालते हैं। हालांकि रोज़ाना उनके सामने ये लोग मुझे मारते पीटते, इसके बावजूद उनका दिल नहीं दुखता था। वो एक तरफ बैठे चुपचाप ये सब देखते रहते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि मैं उनकी बेटी थी, फिर भी वो मेरे साथ होने वाले इस सुलूक पर खामोश रहते थे और उनकी खामोशी ही सबको बढ़ावा देती थी। खैर वक्त यूं ही गुजरता गया। काफी साल हो गए, अब तो मैं 20-22 साल की हो चुकी थी।
ہمارے ہاں 17-18 سال کی عمر میں ہی لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی تھیں، لیکن اب تک میرے لیے کوئی رشتہ نہیں دیکھا گیا تھا۔ ویسے بھی میں نے کوئی امید نہیں کی تھی کہ میرے لیے کوئی سوچے گا، لیکن پھر ایک دن اچانک نہ جانے ایسا کیا ہوا جو سب کو میری شادی کی پڑ گئی۔ ایک دن میری سوتیلی ماں بھاگی بھاگی خوشی خوشی سے گھر واپس آئی اور کافی دیر تک کمرے میں بیٹھ کر دادی اور پھپھو سے کوئی بات چیت کرتی رہی۔ ان کے بیچ ایسا لگاؤ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر میں نے نظر انداز کر دیا، لیکن پھر اسی شام سوتیلی ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہم تجھے ساری زندگی اپنے سر پر تھوڑی بٹھائے رکھیں گے، تیری شادی کی عمر ہو چکی ہے، لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ اب تک ہم نے تیرا رشتہ کیوں نہیں کیا، اس لیے ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ تیرا رشتہ طے کر دیا جائے۔ جب سوتیلی ماں نے مجھے بلا کر یہ سب کہا تو مجھے لگا کہ کمرے کی چھت گویا میرے سر پر آ گری ہو۔ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ یوں اچانک ہو جائے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ ان لوگوں نے اب تک کوئی رشتہ بھی ڈھونڈ لیا ہوگا، سب کچھ طے کرنے کے بعد ہی تو مجھے بتا رہے تھے، جیسے یہ میری زندگی نہیں بلکہ کسی فلم کی کہانی ہے۔ یوں بات کی جا رہی تھی جیسے میں کوئی پتھر ہوں یا کوئی بے جان چیز ہوں جو اپنے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں سکتی۔ میری دادی نے کہا کہ ہم نے تمہاری شادی ایک بوڑھے سے طے کی ہے، کافی اچھا آدمی ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے اس کے پاس، ہمارا شکر مناؤ کہ اتنی اچھی جگہ تمہارا رشتہ کروایا ہے، ورنہ تم سے کون شادی کرتا۔ مطلب یہ سب ان لوگوں نے مل کر کیا ہے۔ دادی نے کہا کہ ہم نے تمہاری شادی ایک بوڑھے سے طے کی ہے، کافی اچھا آدمی ہے۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سن کر آ کر جانوروں کے باڑے میں بیٹھ گئی۔ میں بالکل سن ہو چکی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ میرے حواس تو کام کرنا ہی بند ہو گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بڈھا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیا اس کے ساتھ شادی کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ ویسے بھی یہاں پر کسی نے کون سا مجھ سے کوئی رائے مانگی تھی یا مجھ سے پوچھا تھا، میرا کچھ کہنا بھی بیکار تھا۔ لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ بڑی عمر کے لوگوں سے اگر شادی کرو تو وہ بہت بری طرح سے پیش آتے ہیں، اور اس بوڑھے آدمی کو تو میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ اگر اس نے مجھ پر شک وغیرہ کیا اور ویسے ہی پیش آیا جیسے یہاں پر سب لوگ مجھ سے پیش آتے ہیں تو میری زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی۔ میں نے سوچا کہ ایک بار اپنی سوتیلی ماں سے بات کرتی ہوں کہ وہ میری یہاں پر شادی نہ کروائیں، ہو سکتا ہے ان کے دل میں تھوڑا سا رحم آ جائے اور وہ میری بات مان گئے۔ ایک دفعہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اگلے دن ہمت کر کے ان سے بات کی اور کہا کہ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ غصے میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن مجھے بات تو کرنی ہی تھی۔ اور پھر جب میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، آپ اس شادی سے انکار کر دیں، تو وہ غصے سے اٹھی اور مجھے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میں صحن میں آ کر منہ کے بل نیچے گری، اور وہ بولی کہ تیری اتنی ہمت کہ تو میری بات کاٹے مجھے انکار کرے گی۔ شور کی آواز سن کر سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ دادی نے کہا اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے جو دن دہاڑے تو نے اسے مارنا شروع کر دیا ہے، بتائے گی کیا مسئلہ ہے؟ سوتیلی ماں بولی ارے مسئلہ کیا ہے، یہ سب تو یہی بتائے گی نا، زیادہ اس کی زبان چلنے لگ گئی ہے جو کہہ رہی ہے کہ شادی نہیں کرے گی۔ یہ سن کر دادی نے بھی مجھے ایک ٹھوکر ماری اور کہا کہ کیوں رے، تیرے اندر اتنی ہمت آ گئی ہے کہ ہمارے فیصلے سے انکار کرے گی؟ یہ فیصلہ ہم سب نے مل کر کیا ہے، تو ہوتی کون ہے اس سے انکار کرنے والی؟ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سب میں یہ لوگ ایک ساتھ شامل ہوں گے۔ ویسے تو کسی بھی بات میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے تھے، تو اس بات میں کیسے شامل ہو گئے؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، کوئی تو مقصد ہوگا ان سب کا۔ بنا اپنے مفاد کے تو یہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ میرے انکار نے ان سب کو بھڑکا دیا تھا۔ سوتیلی ماں کہنے لگی کیوں، تیرا چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے جو تو شادی سے انکار کر رہی ہے؟ ابا جو اس وقت کام سے تھکے ہارے واپس آ رہے تھے، دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی جیسے ہی انہوں نے سوتیلی ماں کے منہ سے نکلے یہ الفاظ سنے تو دوڑتے ہوئے میری طرف آئے اور کہنے لگے کہ کس کے ساتھ آنکھ مٹکا کر رہی ہے، بتا مجھے، کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا میں تیری، جلدی بتا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے زور زور سے مارنے لگے۔ میں نے ابا سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ، مجھے بس اس بوڑھے آدمی سے شادی نہیں کرنی۔ سب مل کر مجھے مارنے لگے، یہاں تک کہ میں بالکل ہی بے ہوش ہو گئی۔ میرے ایک انکار نے ان سب کو اتنا زیادہ بوکھلا دیا تھا اور اتنا زیادہ غصہ دلا دیا تھا، تو ضرور کوئی بڑی بات ہوگی۔ سب پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ ویسے بھی انہیں کون سا میرے انکار کی پرواہ تھی، لیکن اب مجھے وہ وجہ جاننی تھی جس وجہ سے وہ میری شادی اس بوڑھے آدمی سے کروانے کے لیے تیار بیٹھے تھے اور ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی؟ اور پھر 2-3 دن بعد مجھ پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ لوگ اس شادی کے لیے جان توڑ کوشش کیوں کر رہے ہیں۔ دراصل اس بوڑھے کے نام کچھ زمین تھی اور اس کا کوئی والی وارث بھی نہیں تھا۔
जब सौतेली माँ को उस बूढ़े के बारे में पता चला तो वो उसके पास गई और उससे कहा कि अगर तुम ये ज़मीन हमारे नाम कर दो तो हम अपनी जवान लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। वो बूढ़ा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। वैसे भी इस बुढ़ापे में उसने इस ज़मीन का क्या करना था, इसलिए सोचा कि ये ज़मीन उनके नाम करके शादी कर लेता हूँ। ये सब ये लोग ज़मीन के लालच में ही कर रहे थे। आपस में मिल बांटकर एक फैसला कर लिया और फिर मुझे सुना दिया कि तुम्हारी शादी उस बूढ़े से कर दी जाएगी। उन सबको तो ज़मीन से मतलब था। मैं जिस मर्जी हाल में रहूं, इस बात से किसी का क्या लेना देना। इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता न चल सका। बहरहाल शादी की मुख्तसर सी तैयारियां कर ली गईं और अगले जुमे ही मेरी शादी का दिन ठहरा दिया गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मैं अब भी इस शादी के हक में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कौन सा मेरी बात को अहमियत दी जाती थी, इसलिए ज़बरदस्ती ही सही मुझे दुल्हन बनाकर बिठा दिया गया। वो बूढ़ा कुछ लोगों के साथ आया और मेरा निकाह उससे कर दिया गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। उसी दिन मेरी रुखसती की गई। वो मुझे साथ लिए दूर दराज एक झोंपड़ी में आ गया। मैं हैरान रह गई कि इतनी ज़मीन का मालिक शख्स इस झोंपड़ी में रहता है। जब मैं रुखसत होकर आई थी तो मेरे साथ घर से कोई भी नहीं आया था। उन लोगों ने तो मुझे ये कहकर रुखसत किया था कि दोबारा पलट कर कभी कभी इस घर में कदम मत रखना, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। वो बहुत खुश थे कि हमें ज़मीन मिल गई है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, मुझे किसके हाथों में दिया गया है। इस बात से भी मैं मुकम्मल तौर पर नावाकिफ थी। मैं जिसने बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं थी, बाहर लोग किस किस तरह के होते हैं, मैं इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान थी। अब यहाँ आकर परेशान हो रही थी। उस बूढ़े ने मुझे कहा कि तुम यहाँ रुको, मैं कुछ देर में आता हूँ, यहाँ से हिलना मत। वो शदीद गुस्से में बात कर रहा था, हालांकि अभी तो हमारी शादी हुई थी। मैं समझ गई थी कि ये भी मेरी सौतेली माँ और दादी वगैरह की तरह ही मुझ पर ज़रूर जुल्म वगैरह करेगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। जैसे ही वो झोंपड़ी से निकला, मैं फ़ौरन से अल्लाह के हुजूर खड़ी हो गई और रो रो कर दुआएं करने लगी कि या अल्लाह मुझे इससे बचा ले। सजदे में गिरी मैं रोई जा रही थी। या तो मुझे यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल दे या फिर मुझे मौत दे दे। मैं अब मजीद जुल्म नहीं झेल सकती हूँ। इतने साल घर वालों के मजालिम सह सह कर अब मुझ में और हिम्मत नहीं है कि मैं किसी और के जुल्म बर्दाश्त करूँ। मैं दुआ करते करते रोते रोते वहीं पर सो गई। मेरी जिंदगी मुझे किस मोड़ पर लेकर आ गई थी मैं कुछ भी नहीं जानती थी, और आगे क्या होने वाला है इस बात का मुझे अंदाजा भी नहीं था। मुझे सोए काफी देर गुजर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई है क्या, मेरी आवाज आ रही है या नहीं। मैं चिल्लाए जा रही थी। उसी वक्त दरवाजा खुलने की आवाज आई। मुझे हैरत हुई कि मैं तो किसी झोंपड़ी में सोई थी, वहाँ तो कोई दरवाजा नहीं था, तो ये कौन सी जगह है। मेरा हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। अंधेरे में मुझे मालूम पड़ा ये तो दीवार है। मैं दोबारा से चिल्लाई, ये कौन सी जगह है, तुम कौन हो, मुझे कहाँ लेकर आए हो। लेकिन वो जो कोई भी था मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा था। अंधेरे में बस मुझे एक साया सा नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो मेरे करीब आकर बैठा और उसने बल्ब जलाया। एकदम से रोशनी की वजह से मेरी आंखें चुंधिया गईं और फिर मैंने रोशनी में देखा कि तो वो कोई नौजवान था। मैं फौरन से घबरा गई। उसने मुझसे कहा कि डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तो तुम्हें गलत हाथों से बचा कर लाया हूँ। दरअसल जिस बूढ़े से तुम्हारी शादी की गई थी वो लड़कियों का कारोबार करता है। तुमसे शादी का नाटक करके वो तुम्हें आगे बेचने का इरादा रखता था। तुम मुझे नहीं जानती होगी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तब से जानता हूँ जब तुम बहुत छोटी सी थी। दरअसल मैं तुम्हारे मामू का बेटा हूँ, यानी तुम्हारा कज़न। जब तुम्हारी अम्मी की वफात हुई तो उसके बाद से तुम्हारे अब्बा लोगों ने हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया। कभी तुम्हें तुम्हारे ननियाली रिश्तेदारों से नहीं मिलने दिया। मैं और अब्बा हमेशा इसी बात की फिक्र में मुब्तला रहते थे कि तुम ठीक हो या नहीं, और गाहे बगाहे हमें खबर मिलती थी कि तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारे घर वाले तुम पर बहुत जुल्म करते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरे अब्बा ने मुझसे वादा लिया कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अब वो नहीं रहे हैं, लेकिन मैं उनसे किया हुआ वादा एक लम्हे को भी नहीं भूल पाया। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी एक बूढ़े आदमी से की गई है जो कि लड़कियों का कारोबार करता है, तो मैं फौरन से अपने कुछ दोस्तों के साथ पहुंचा और तुम्हें बचा लिया। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा कोई कज़न मुझे इस तरह से बचाएगा। ये तो अल्लाह ने मुझ पर बहुत करम किया था। मुझे याद था मैं बचपन में इससे मिली थी, इसके बाद तो भूल ही गई। मिलने का इत्तेफाक जो नहीं हुआ था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम कोई कमज़ोर लड़की नहीं हो।
जितना मैं समझ सका हूँ तुम्हारे घर वाले पैसों के पुजारी हैं। देखो, दरअसल मेरे अब्बा ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया था। इस कारोबार के अंदर तुम्हारी अम्मा भी शराकतदार थीं। तुम्हारे नाना की जायदाद में से जो हिस्सा तुम्हारी अम्मा का बनता था, उन्होंने वो मेरे अब्बा को दिया और कहा कि कारोबार में लगा दें। ये बात किसी को भी नहीं पता है। इससे पहले कि तुम्हारी माँ किसी को बताती, उनकी वफात हो गई। उनकी वफात के बाद हम लोगों ने भी इस बात को किसी को नहीं बताया। वैसे भी तुम्हारे घर वालों ने हमसे नाता तोड़ लिया था। मेरे अब्बा समझ गए थे कि ये सब लोग लाची हैं। अगर बता दिया तो जबरदस्ती ही सही, लेकिन वो इस हिस्से को अपने नाम करवा लेंगे, क्योंकि ये हिस्सा तो दरअसल तुम्हें मिलना था। तुम्हारा हक किसी और के पास न जाए, इसके लिए हमने कई साल कोशिशें जारी रखी और अब तुम्हारा एक बहुत बड़ा हिस्सा इस कारोबार के अंदर है। थोड़ी सी हिम्मत करो और मेरे साथ घर चलो। मैं जाकर सबके सामने असलियत रखूंगा तो देखना कैसे उन सब के चेहरों के रंग बदल जाएंगे और तुम्हारे साथ उनका रवैया भी। जिंदगी में पहली बार कोई मुझे उम्मीद दे रहा था, इसलिए मैंने उसकी बात पर यकीन किया और उसके साथ घर वापस आ गई। सौतेली माँ ने जब मुझे देखा तो कहने लगी, हमने तुझे मना किया था ना कि यहाँ पर मत आना, फिर तेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे हुई। मेरे कजन ने उन्हें सब कुछ बता दिया। उस बूढ़े को भी पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। मेरी तलाक हो गई, मैं अब आज़ाद थी। जब मेरे घर वालों को पता चला कि मैं इतने बड़े कारोबार की मालिक हूँ, तो जैसा मेरे कज़न ने कहा था वैसे उनके रवैये फौरन से तब्दील हो गए। लेकिन मैं उनका असल चेहरा पहले देख चुकी थी, इसलिए उन सब को छोड़कर अपने मामू के घर आ गई। मेरे मामू तो अब रहे नहीं थे, लेकिन मेरी मामी और उनके बच्चे थे। उनके साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। कुछ अरसे बाद सबने मिलकर मेरी शादी मेरे उस कज़न से तय कर दी। अपने कज़न जो कि मेरा शौहर भी है, मैं उसके साथ अब एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ।